लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए सुनते हैं और आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके नतीजे सामने आएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने समझौते के बाद भी गोलीबारी की, जिसमें एक अमेरिकी सैन्य विमान को नुकसान पहुंचा। ऐसा नहीं होना चाहिए था और ईरान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। Mr. President, you said that Iran violated the ceasefire. Yeah, Will they face any consequences? Well, you'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will exactly. the U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Sir, why do you think they अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फेथ एंड फ्रीडम कोएलिशन की 2026 पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार ने ऐसा ऐतिहासिक समझौता किया है जिसे ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा और अब ईरान में नेतृत्व करने से भी लोग डर रहे हैं। And we're going after the bad ones first. We're getting them out. Last week, we signed a historic agreement to accomplish what no president has ever been able to accomplish before, that Iran will never have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And thanks to the power and skill of the United States Armed Forces, Iran today has no Navy, no Air Force, no anti-aircraft capability, no radar, virtually no manufacturing. Their drone capacity has been cut by 82%. Their missile capacity has been cut by 80%. Their rocket launchers have been cut by 90%. Their leadership has been killed a first time, and their leadership has been killed a second time. And nobody wants to be the leader of Iran anymore. They said, who would like to be the president? And everyone said, no, thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच शांति के लिए त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Today is a good day in that we are happy to announce a framework agreement between the sovereign government of Lebanon and of course the government of Israel, with a mediation and support of the United States of America, that begins to put in place a framework for lasting peace and security. And that's what these two nations deserve. The people of Lebanon have suffered tremendously now for decades as a result of outside interference in their affairs, of countries trying to use the country as a launch pad for attacks. And this is not what the people of Lebanon want, and that's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country. बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के उद्घाटन समारोह में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राजनीति को अंत्योदय का विचार दिया। शासन की नीतियों का आधार समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए और भाजपा इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगले 2 दिन भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, आदर्शों और संस्कारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भिन्न कैसे है और कैसे हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है, इन सब को लेकर के एक विशेष प्रशिक्षण के अभियान के क्रम में अनेक अनुभवी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन यहां पर महानगर से जुड़े हुए इन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्राप्त होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें बिना आधार के निशाना बनाया जा रहा है। इसे कांग्रेस की छवि खराब करने की राजनीतिक कोशिश है और राज्य सरकार पर विकास कार्यों की रफ्तार धीमी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने जब एक्शन में जो कहा वही बात है। किरोड़ी मीणा जी बहुत सीनियर नेता है उस पार्टी के, RSS कहने के भी हैं। इसमें कई बार वो पार्टी छोड़ी वापस छोड़ी उनके ऊपर है, पर वो सरकार बनने के पहले से ही सब पे आरोप लगातार है। अरे मैंने कहा तथ्य तो प्रस्तुत करो, तो उनके आर्ग्यूमेंट बड़ा जवाब बड़ा बेतुका आया है कि तथ्य की जरूरत ही क्या है। अरे भाई आप कोई आरोप लगाओ तो कहो भाई ये आरोप इस प्रकार लगा रहे, इसमें ये सक्सेस फिगर है, वो नहीं बताएंगे। तो डोटासरा जी एक पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, मंत्री रहे हुए हैं, उनको इस प्रकार से आप घेराबंदी कर रहे हो, ये अपना एक षड्यंत्र है कि डोटासरा जी का नहीं है। डोटासरा जी के माध्यम से पूरी कांग्रेस डैमेज करने का षड्यंत्र इनका बीजेपी का है और लगता है हाईकमांड और लोअर कमांड। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित राजस्थान दौरे पर कहा कि बाड़मेर रिफाइनरी प्रदेश की अहम परियोजना है और इसके उद्घाटन पर बड़ी जनसभा होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना उनकी सरकार में शुरू हुई थी और भाजपा शासन में करीब 5 साल तक रुकी रही। गहलोत ने देरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। सुना पड़ा मैंने आज की वो रिफाइनरी के अंदर ही मीटिंग करेंगे, पहले की तरह आम सभा नहीं करेंगे। आम सभा ही करनी चाहिए उनको, तो इतना बड़ा काम हुआ है और हमने बहुत ही उन्होंने विनय हमारा अधिकार तेज निकले। उसके बाद में लगातार हम लोगों ने प्रयास सालों किए, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने HPCL से बात करके और ये रिफाइनरी की कंपनी बनवाई राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में। HPCL राजस्थान दोनों मिलकर वो कंपनी है, तो उनके ऊपर वो किस प्रकार उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं बार बार पूछता हूँ 5 साल रोके क्यों रखा, इसका जवाब दे प्रधानमंत्री दे, NDA गवर्नमेंट दे। उन 5 सालों में बर्बादी जो हुई है, 37 करोड़ की रिफाइनरी 80 करोड़ की हो गई, इसका जवाब आज तक नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवसेना UBT के सांसद अरविंद सावंत ने अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदे में गड़बड़ी के मामले पर कहा कि देश की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। उन्होंने SIT की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जय श्री राम का नाम लेकर भ्रष्टाचार किया गया है। इस मामले में सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। दाखिल हुई है। अरे उससे क्या मतलब है, सब गुलाम है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या फर्क पड़ने वाला, गुलाम है सब। इस देश की सबसे बड़ी दुखी दर्द है कि न्याय व्यवस्था गुलाम है देश में। जो संविधान की रक्षा कौन कर सकता है, तो न्याय व्यवस्था करती है क्या? सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर रही, बाकी लोगों की क्या बात करते हो? गुलाम जैसे बैठे। हमारी 4 बरस हो गए हमारी पार्टी की चुनाव चिन्ह और नाम के ऊपर की जो केस चल रही है, जिन्होंने पार्टी छोड़कर जो गद्दारी की है, आज तक उनको समय नहीं मिला। जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते वो है, तो बाकी वो इलेक्शन कमीशन तो पक्का गुलाम, झाड़ू मारने का काम रह गया। बाकी ऐसे लोग वहां बैठे SIT विश्वास करते हो? एक नहीं है, जो इशारा वहां से आएगा वो SIT निर्णय देगी। तो लेकिन चलो, एक अच्छा हुआ राम लल्ला ने न्याय दिया। जिस जय श्री राम का नाम लेकर व्यभिचार करते हो ना, उसी ने एक तमाचा लगा दिया। योगी आदित्य। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गाजा मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री से सवाल उठाती रही है कि भारत इजराइल के समर्थन में क्यों खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप है और देश की पारंपरिक विदेश नीति से समझौता किया गया है। पर लीक हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, किसान रो रहे हैं, नौजवान सड़कों पर हैं। इन्हें सूझ रही है साहब 2014 में प्रधानमंत्री ये थे, फलाना ढिमका। कितने साल से कौन प्रधानमंत्री ये मायने नहीं रखता।
उस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया यह मायने रखता है। पीपल आर नॉट जज्ड बाय द ईयर्स यू पुट इन सर्विस, व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड। नीट, आत्महत्याएं बच्चों की, किसानों की आत्महत्याएं। जब इतिहास इनको जज करेगा, इनके तमाम समर्थकों को जज करेगा, तो इन सबका नाम भी उसी फेहरिस्त में आएगा जिन्होंने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए, जमीर को सुला दिया। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश में बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा सरकारों में पेपर माफिया हावी है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं के हितों की रक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए विजन इंडिया आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk,
Let's connect and let's smile. आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।